this class. Yesterday we were talking about tangent plane. Question of a tangent plane for a cone. So I was considering the cone whose vertex is at the origin. Ax is question of a tangent plane. Question of a tangent plane. So I was considering a cone ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2g as zx plus 2h xy is equal to 0, passing through a like this, right? So the cone passing through origin. This is the concept. So we got, and one point arbitrary we took alpha, beta, gamma. So we got that if you take any plane passing through this point, it's a space curve. तो कोई पॉइंट नहीं, ये स्पेस पे है. So here when we will take a tangent plane, it will passing through the origin. कोई भी tangent plane अगर हम लेंगे तो क्या होगा वो? It will be containing the generator also, है ना? इस पूरे लाइन को रखेगा इसके, ये लाइन्स के अंदर आ रही होगी. If it contains the generator, it will be passing through the origin. So we got condition of tangent line L times A alpha plus H beta plus G gamma plus M times H alpha plus B beta plus F gamma and N times G alpha plus F beta plus C gamma is equal to D. It was a condition that a line will be a tangent line. It was a condition. I was considering any line x minus L upon L is equal to y minus beta upon M is equal to z minus gamma. It was the condition of for this line to be a tangent line, and then after solving we got the equation of a tangent plane which was coming x times by eliminating this from this equation. So it was coming x times A alpha plus H beta plus G gamma plus y times H alpha plus B beta plus F gamma plus Z times G alpha plus F beta plus C gamma is equal to 0. This was the equation of a tangent plane which is passing through the origin. This is your equation of tangent plane. Passing through the origin, of course. Any tangent plane passes through the origin. And it contains the generator. Now, working rule. So, working rule means how you can solve it. So, here you have fxyz is, we have f of, इसको अगर मैं फंक्शन मान लूँ xyz का, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ कोड ax square plus by square plus cz square plus twice f yz plus twice g zx plus twice h xy is equal to 0, at any point alpha beta gamma will be passing through any point alpha beta gamma will be lying on this plane as well as on the cone. So I can write f of alpha beta gamma, and it will satisfy the equation of the cone A alpha square plus B beta square plus C gamma square plus 2f. So yz is beta gamma plus 2g xz alpha gamma plus 2h alpha beta is equal to 0. Now I will find what about del f over del alpha. With respect to alpha, you will differentiate how much it will be. क्या आएगा भाई?
अल्फा स्क्वायर सर। जी अनिल आप बताइए, अनिल रावत। Yes, sir. Del F over del alpha is how much? Sir, a plus 2gx plus 2h beta. 2 भी तो है साथ में। Del F over del alpha Yes, sir. Yes, sir. 2a alpha. हाँ प्लस Sir, plus 2g gamma. हाँ 2 बाहर ले लिया मैंने ना। Yes, sir. Yes, प्लस sir. जी गामा Sir, प्लस h beta. एच बी। ओके यस सिमिलरली म्यूट कर दिए। डेल एफ ओवर डेल बीटा यू कैन फाइंड 2 टाइम्स तो बी बीटा। पहले अगर मैं अल्फा अल्फा के टर्म लिख लें अगर पहले हम चलो तो एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा। म्यूट योर माइक एंड सिमिलरली del f over del gamma. So del f over del gamma is c gamma. So alpha पहले इस तरह alpha g alpha twice of g alpha twice of g alpha plus बीटा गामा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बीटा किधर ये रहा f बीटा g alpha plus f बीटा plus c gamma. So here you see this is the term. If you see this is what this first term is that the term of this है ना। ये देखो ये वही आपका डेल एफ ओवर डेल अल्फा ट्वाइस। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल बीटा इज है ना एंड डेल एफ ओवर डेल गामा। सो आई कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन। इसको कुछ हमने नंबर दिया था अगर so the equation of tangent will become so you can say that the condition that the line is the tangent line this can be written as L of del f over del alpha plus m of del f over del beta plus n of del f over del gamma is equal to 0. इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इट इज इजी टू मेमोराइज एंड इजी टू कैलकुलेट। ये जो क्वेश्चन थी ये क्या थे आपकी तो आपने क्या करा जो पॉइंट जिससे पास हो रहा है where you want to find a equation of a tangent plane उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराया उससे हमने फाइंड कर लिया del f over del alpha. You saw that del f over del alpha is nothing but the coefficient of L in the condition of tangent line. This was the condition. And similarly, equation of tangent plane may be same है. The equation of tangent plane will become what? क्योंकि is equal to 0 है तो 2 को I can shift twice to 0 side, right hand side. And similarly, the equation of the tangent plane at alpha beta gamma, this can be written as x times del f over del alpha plus y times del f over del beta plus z times del f over del gamma is equal to 0. So these are the conditions which you can write by using this. Okay. ठीक है भाई। पता नहीं कैसे देखिए हम
केवल भुवनेश कुमार, Yes, sir. ठीक है इक्वेशन ये। Yes, sir. सही है। कल का लेक्चर आपने देख लिया था, कल आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे शायद। सर आपने भेजा ही नहीं सर यूट्यूब वीडियो। क्यों? कल लेक्चर शेयर नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स के? सर उसमें यस सर, मैंने कर दिया देखा था। था यूट्यूब चैनल पर सर, उसमें केवल 20 वीडियो हैं सर बस। नहीं, लेक्चर तो शेयर किया है मैंने, इसी लिंक पे शेयर किया। यस व्हाट्सएप सर, आपका किया है। व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा आपका क्या? सर व्हाट्सएप पे आपने लिंक भेजी थी। लिंक भेजी है, उस पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए आगे उसे। लिंक सर तो मैं वो उसी दिन शेयर कर देता। मैंने चैनल पे देखा था सर। चैनल में हो सकता है कि वो चैनल में पड़ा होगा, वीडियोस में प्ले लिस्ट में नहीं आया वो, अभी प्ले लिस्ट में मैं नहीं डाला हूँ मे भी। ठीक है, ओके सर, मैं देख लूंगा। हाँ वीडियो से पड़ा हुआ है लिंक को, और इस पे व्हाट्सएप पे लिंक पड़ा, आप उसमें क्लिक करिए, वो खुल जाएगा, आपको कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, उसी लिंक पे क्लिक करिए डायरेक्ट। ओके सर, ओके सर। तो उसी को हमने कंटिन्यू किया है। तो दैट क्वेश्चन व्हिच वी हैव डिराइव्ड यस्टरडे ऑलरेडी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म using this partial derivative concept. So next we have condition of tangency. Condition of tangency that a plane will be the tangent plane. What is the condition that we will drive? The question of tangent plane thing. Now what is the condition? So next we have condition of tangency. It is your 7.72 article, page 363. Condition of tangency of the plane. Plane I am taking ux plus py plus wz is equal to 0 because you know क्वेश्चन हमने ड्राइव करा भी, कोई भी टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। वी आर कंसीडरिंग द कोन whose vertex is origin. So condition that this plane will be the tangent plane to the cone. Condition of tangency of the plane to the cone. Cone I am considering is a standard cone. Okay, so this is number 1 कर दे रहे हैं, this is number 2. This is the cone. Now we have just derived that we know that equation of the tangent plane at alpha beta gamma is what is that equation? अभी हमने ड्राइव करी थी, ये है ना, x of इस कोण की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 1 टू 2 इक्वेशन is given by x of del f over del alpha, that means a alpha plus h beta plus g gamma plus y times del f of del beta. It was coming h alpha plus b beta plus f gamma plus z times del f over del gamma. Del f over del gamma will be g alpha plus f beta plus c gamma is equal to. It is equation number 3. Okay. Now equation 1 and 3 represents the same plane. ये हमने 1 माना है कि ये आपका कोई प्लेन है, इसका टेंजेंट प्लेन है, एंड वी नो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 2 इज दिस, है ना. So if both are representing the same plane, so we can find a condition.
Now, equation 1 and 3, they represent the same plane, same tangent plane. So we can compare their coefficients. So on comparing the coefficients of x, y, z, we get, जब सेम उसके हैं तो कोएफिशिएंट कंपेयर करा सकते हैं 1 और 3 के. तो 1 का कोएफिशिएंट u है, इसका कोएफिशिएंट ये है, तो हम कैसे कंपेयर कराते हैं? u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x in third a alpha plus h beta plus g gamma is equal to v upon h alpha plus b beta plus f gamma and w upon g alpha plus f beta plus c gamma. इससे हम कंपेयर करा रहे हैं. सपोज इट इज आई एम टेकिंग दिस इक्वल टू सम 1 अपॉन लैम्डा. 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल कर दिए इसे, क्योंकि हमें कंडीशन निकालनी है, तो मैंने 1 अपॉन लैम्डा ले ली. फिर लैम्डा इज एनी स्केलर. इज इट क्लियर? यस सर. है ना? कंपेयर करा दो and equating to 1 upon lambda. So what will happen? So this implies that you will be getting what? इसको अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट ले ले, पहले फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू कैन राइट a alpha plus h beta plus g gamma minus u lambda is equal to 0, है ना? It is equation number कितनी थी? 1 2 3, so it is 4 suppose. Similarly, for comparing second and fourth, you will be getting h alpha plus b beta plus f gamma minus b lambda is equal to 0 and g alpha plus f beta plus c gamma minus w lambda is equal to 0. It is equation number 6. So you got this ratio. And one more equation. Also, this alpha beta gamma, this lies in the tangent plane. है ना? This lies on the plane ux plus vy plus wz is equal to 0. So therefore, what will be happen? U alpha plus v theta plus w gamma is equal. इस पे भी लाई करेगा. ये यहाँ पे कंसीडर करा है कि एक आर्बिट्रेरी इक्वेशन टेंजेंट प्लेन थी, वे अल्फा बीटा गामा लाइन. यहाँ पर हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो लिखी, इन्हें कंपेयर करा दिया, इसी से कंडीशन निकल आएगी बस. ठीक है, तो यू गॉट 7. सो नाउ अगर इन 4 इक्वेशंस में वी आर एलिमिनेटिंग 4 अननोन्स हैं, सो ऑन eliminating alpha beta gamma lambda from equation 4 to 7 we get, जब आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा? I will be getting a 4/4 डिटर्मिनेंट. कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम? इनके कोएफिशिएंट की एक डिटर्मिनेंट बना a h g u, है ना? We get Yes, sir. a determinant a h g u, है ना? वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो then second row will be what? h d f b, h d f b. Third will be what? g f c w, g
F C W and last one U V W 0. तो लास्ट इक्वेशन लिखी थी इस साइड U V W, यहाँ पे लैम्डा कोएफिशिएंट 0. This equal to 0. It is the condition. This is the coefficient of this alpha beta gamma k coefficient matrix. So its determinant equal to 0. If this equal to 0, then this system will have a solution and we will say that this is the required condition of tangency, which is the condition of tangency. Condition of tangency. Okay. तो 4/4 की डिटरमिनेंट है, सॉल्व करने का मेथड वही होता है. पहले ए के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो जब आप ए के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 3/3 की डिटरमिनेंट आएगी और फिर 3/3 को वैसे सॉल्व करेंगे तो इसका टर्म आ रहा है ना ए टाइम्स एक टर्म जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई वांट टू सॉल्व इट. सो ए बिकॉज ए इज फर्स्ट टर्म प्लस माइनस सिंपल वही, तो ए टाइम्स क्या आएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी एफ बी एफ सी डब्ल्यू बी डब्ल्यू 0 है ना, ये फर्स्ट टर्म आएगा एंड ऐसा ही माइनस एच प्लस जी माइनस यू एंड इसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट टर्म दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, या फिर से सॉल्व करेंगे इसे है ना, या फिर से आप बी के टर्म में एक्सप्लेन करते मान लीजिए तो बी टाइम्स 0 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस एफ टाइम्स how much 0 minus BW and then plus B times how much FW minus PW CV FW minus CV. ये फर्स्ट टर्म आएगा इसका ऐसे करके. सिमिलरली एच के लिए लिखेंगे, फिर जी के लिए, फिर यू के लिए. इससे आपको कंडीशन मिल जाएगी. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. प्रॉब्लम जब हम आगे इसकी वी विल टेक अप सम प्रॉब्लम्स देन देयर आई विल डिस्कस दिस थिंग्स जब एक्सरसाइज से पहुंचेंगे एक और टॉपिक के बाद. सो दिस डिटरमिनेंट, इसको अगर हम नंबर आई एम पुटिंग इट नंबर 8 7 हो गया 8 सपोज इट इज नंबर 8. सो इसको हम और सॉल्व करके ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट 8, this can be written as इससे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल A of U स्क्वायर प्लस B of V स्क्वायर प्लस कैपिटल C of W स्क्वायर प्लस 2H U V कैपिटल में H प्लस 2F VW plus 2G WU is equal to 0. This can be written in this form also. इसे जब हम solve करें, I can write this where A is what, where these A जो कैपिटल में मैंने लिए A B C H F and G, they are the cofactors of A, B, C, H, F, G respectively. ये इसके cofactors है. Capital A is the cofactor of small a in the determinant. कौन सी डिटरमिनेंट में, अगर मैं यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूं तो जो डिटरमिनेंट बची आपकी, ये सॉरी ये वाली डिटरमिनेंट ले लूं अगर मैं फर्स्ट इस डिटरमिनेंट A H G H B F, इसको हम U V W को हाइड कर दे तो जो बचा आपके पास, जैसे आई एम हाइडिंग U V W, ये जो डिटरमिनेंट है A H G के टर्म्स H B F
जी एफ सी। इस डिटरमिनेंट का अगर हम कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होगा, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ ए, जस्ट हाइड द रो एंड कॉलम है ना, तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ ए। कैपिटल ए इज व्हाट, so that means capital A is what, cofactor of A, it is how much, BC minus F square. What is B, capital B is cofactor of B, what is the cofactor of B बताइए जरा इस डिटरमिनेंट में, AC minus G square. AC CA minus माइनस, G square. हाँ AC G नहीं, square. साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस प्लस साइन आएगा है ना, तो AC Minus माइनस G स्क्वायर, AC माइनस माइनस आएगा प्लस, Minus डायगोनल तो G. माइनस प्लस, है। डायगोनल तो प्लस होती है, Yes, प्लस sir. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डायगोनल प्लस होती है ना, प्लस साइन रहेगा, AC माइनस G स्क्वायर। सिमिलरली कैपिटल C इज हाउ मच, C का C इधर दिस, AB AB माइनस, AB minus H. AB minus H square. yes, this is your C. Similarly you can find your capital H, वो हो जाएगा FG minus CH, साइन एडजस्ट करके, F will be GH minus AF and G will be HF minus BG, ठीक है। इन टर्म्स को यहाँ रखेंगे अगर आप इसमें, तो सॉल्व करके ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा, ये वही है जो मैंने यहाँ भी एक्सपेंड करके लिखा था ना, ये चीज आ जाएगी। तो इट इज इजी टू मेमोराइज आल्सो, कैपिटल ए यू स्क्वायर, कैपिटल बी वी, ये सेम वही है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस, बस कैपिटल ए बी सी विल बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए बी सी, तो इट इज द सेम, इट विल गिविंग यू द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। So this is the condition of tangents. Is it clear? Yes, sir. Next topic we have 17.8 on the page same 363. Reciprocal cone. Reciprocal cone क्या हुआ भाई? Suppose you have a cone. एक कोन ले रहा हूं मैं, राइट सर्कुलर कोन, ओके। अब इस कोन की यू हैव जनरेटर्स, डिफरेंट जनरेटर्स है ये सब, ये तो है वो जनरेटर्स के, ये सारे इसके क्या है, जनरेटर्स है। व्हेन यू आर rotating it will be becoming a generators lying on the cone है। अब मैं क्या करूं, now I am taking the normal to this cone perpendicular to this generator, इसका अगर मैं जनरेटर लूं perpendicular passing through this vertex also, तो इसका परपेंडिकुलर किस तरीके से आएगा, देखिए 90 डिग्री एंगल किस तरीके से बन रहा होगा, इट विल बी लाइक दिस, इसका 90 परपेंडिकुलर किस ऐसे ही तो आएगा। सिमिलरली इसका 90 डिग्री एंगल इस तरीके से आ रहा होगा, है ना। तो इनका जब हम लोकस निकालेंगे इस तरीके से, तो ये इन सब का जितने भी, तो मैंने 3-4 दिखाई है, यू हैव इनफाइनाइट लाइंस हियर, यू हैव इनफाइनाइट जनरेटर्स, है ना। उन सब का जब आप लोकस लेंगे तो इट विल अगेन बिकम अ कोन, इस तरीके से ऊपर, है ना, वर्टेक्स उसकी भी सेम होगी। सो आई एम टेकिंग द परपेंडिकुलर टू ऑल दीज, एक्चुअली आई एम टेकिंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन्स। अगर टेंजेंट प्लेन का परपेंडिकुलर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर टेकिंग परपेंडिकुलर टू द जनरेटर, क्योंकि एवरी टेंजेंट प्लेन विल बी कंटेनिंग दिस जनरेटर पासिंग थ्रू वर्ड जीरो, है ना। भाई अगर मैं इसके ऊपर कोई प्लेन लूंगा, तो वो प्लेन जो होगा वो क्या होगा, पासिंग थ्रू दिस होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि इसका नॉर्मल, इस लाइन का अगर मैं नॉर्मल ले लूँ, जो लाइन है आपकी, ये अगर मैं टेंजेंट लाइन कह दूँ, तो इसकी नॉर्मल लाइन क्या होगी, ये इसकी, ये इस तरीके से कोन जनरेट हो जाएगा। तो दिस कोन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल कोन।
डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ द normals through the vertex to the tangent planes. ठीक है, लोकस ऑफ द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये थ्रू द वर्टेक्स टू द टेंजेंट प्लेन, मतलब जैसे ये एक हमने लिया, इस पे अगर मैं टेंजेंट प्लेन लूंगा तो वेयर इज द टेंजेंट प्लेन? इसका टेंजेंट प्लेन क्या होगा? दिस इज द टेंजेंट प्लेन। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, है ना, तो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, इस लाइन की बात करूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये आपका क्या होगा? टेंजेंट प्लेन होगा, है ना। और ये टेंजेंट प्लेन क्या होगा? इट विल बी कंटेनिंग दिस लाइन, ये जो लाइन है जिसमें डॉट है ना, तो इसका जो नॉर्मल लेंगे आप, इस टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स क्या आएगा? ये लाइन तो आएगी जो मैं ड्रॉ करी है ना। Yes, sir. अगर आप Yes, sir. नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन ले रहे हैं तो आई कैन से इट इज नॉर्मल टू दिस लाइन आल्सो, इसके नॉर्मल, है ना। तो ये होगा नॉर्मल, लेकिन मुझे लेना कहाँ पर है? वर्टेक्स पे, तो इसे कहाँ लूंगा मैं? यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये इनका लोकस मतलब ऐसे सारे टेंजेंट प्लेन जो बन रहे हैं, तो कितने टेंजेंट प्लेन्स बनना है इसमें? तो यू हैव इनफाइनाइट लाइंस लाइक दिस, तो बहुत सारे टेंजेंट प्लेन्स बनने होंगे। तो जब आप उन सब का नॉर्मल लेंगे तो इधर वाले लाइंस का तो इधर आएगा, इधर वाली लाइंस का इस साइड आएगा, तो भाई अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा? एक कोन जनरेट हो जाएगा ऊपर, है ना। बताओ, जब लोकस लोगे तो Yes, sir. Yes, sir. विजुलाइज कर पा रहे हैं इस फिगर को? Yes, sir. Yes, sir. यस, इसी को हम क्या कह देंगे? तो ये जो कोन बना इस तरीके से, इट इज द रेसिप्रोकल कोन। इस कोन का नाम है आपका रेसिप्रोकल कोन। डेफिनेशन आपकी सिंपल है, लोकस ऑफ द नॉर्मल्स थ्रू द वर्टेक्स टू द टेंजेंट प्लेन्स, so this is called a rod, and you know, if this upper cone is the reciprocal cone for the lower, then lower is the reciprocal cone for the upper, है कि नहीं? अगर मैं कोन Yes, ऐसे sir, बना दूं, बिल्कुल। अगर मैं कोन इसको ऐसे बना देता और इसका रेसिप्रोकल कोन लेता, तो आपका फिर वही होता कि इसका आपके पास यू विल टेक द नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स, तो फिर इस लाइन का नॉर्मल ये आएगा, इस लाइन का नॉर्मल ये आएगा परपेंडिकुलर। ऐसे ही जब यू विल टेक लाइक दिस, तो ये कोन नीचे आ जाएगा। सो बोथ आर रेसिप्रोकल कोन टू ईच अदर, है ना। इट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस रेसिप्रोकल? So I can write the equation of the reciprocal cone. मीन्स अगर आपको एक ओरिजिनल कोन गिवन है, उसी कोन से हम इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन लिख सकते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पता हो, तो यू कैन राइट डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन, लिख सकते हो नहीं? drs का यूज करके, क्योंकि हमें पता है कि drs उसके परपेंडिकुलर है तो एक रिलेशन फॉलो होगी। सेम थिंग हियर, सपोज इक्वेशन ऑफ अ कोन इज गिवन टू यू। ये बताइए आपकी अभी नेक्स्ट क्लास है इसके बाद क्या? Yes, sir. Physics Yes, की sir. क्लास है सर। कितने बजे है? 9:50 से 9:50। 9:50, yes, sir. Yes, sir. 30 तो होने वाला है। चलिए फिर कल ही पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करें अभी इसे। तो इस इक्वेशन को अभी, हाँ थोड़ा सा लेंथी है, चलिए इसे मैं कल ड्राइव करूंगा फिर, वरना मुझे कल फिर से लिखना सर पड़ेगा। 11:40 से फ्री है सर, 11:40 से फ्री है। अरे उस पर यार मैं फ्री नहीं हूँ ना यार, मुझे मेरा रहता है। चलिए इसे कल कंटिन्यू करेंगे और फिर देखते हैं कोई टाइम अगर हुआ तो, ठीक है। जी थैंक यू। इक्वेशन ऑफ थैंक यू सर। इसे कल ड्राइव करेंगे। थैंक यू सर। वो उन्होंने Okay, वो thank सबमिट you. कर दिया भाई, राजा और 2 लड़कों से मैंने कहा था।